Hello everyone, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh, graduate from IIT Roorkee. In this video, I'll be taking up class 10th के probability के 2025 में जितने भी MCQs पूछे गए हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस में हो, चाहे वो बेसिक एग्जामिनेशंस में हो. जितने भी टोटल नंबर ऑफ सेट्स थे उनके सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को कंपाइल करके मैंने यहाँ पे ये आपके पास लिस्ट बनाई है और ये क्वेश्चंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. एंड इन दीज 14 कमिंग डेज 14 फेब तक हम सारे के सारे 14 चैप्टर्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे सो दैट ऑन 15 फेब यू कैन नेल द एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. द कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. सो वी हैव 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रेड फेस कार्ड इज व्हाट. सो अगर हम 52 प्लेइंग कार्ड्स का ब्रेकडाउन देखें, सो इन दिस 52 कार्ड्स देयर आर 26 रेड कार्ड्स एंड 26 जो कार्ड्स होते हैं दोज आर ब्लैक कार्ड्स. अब इन 26 रेड कार्ड्स में वी हैव 13 हार्ट्स एंड 13 जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं डायमंड्स. एंड इन 13 कार्ड्स में 10 हमारे पास नंबर्ड कार्ड्स होते हैं फ्रॉम 1 to 10, फ्रॉम एस टू 10 एक्चुअली. एंड तीन हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं, जैक, क्वीन, किंग दोनों में. तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स विल बी 3 हेयर एंड 3 डायमंड्स. तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स इज 6 एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अगर हम 52 प्लेइंग कार्ड्स में से कोई एक कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं दैट विल बी 52. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी इक्वल टू 6/52 which is equal to 3/26. This will be the final answer. D is the correct answer. Moving on to the next problem. The probability of selecting a number at random from the numbers 1 to 20 is 1. Now this is a wrong statement because अगर हमें कोई specific number select करना है from 1 to 20, उसकी probability हो जाएगी 1 divided by 20. Let's say अगर मैं बोलूं probability of selecting a number 6 from 1 to 20. So total number of outcomes is 20. और अगर हम एक specific number की बात कर रहे हैं so उसको select करने की probability हो जाएगी 1/20 क्योंकि favorable outcome will be only 1. अगर ऐसा बोला जाता है probability of selecting any number at random, ठीक है, that would have been 1. तो ये word a and अगर इसकी जगह any होता that would have made the difference. For any event E, if probability E is equal to 1, then E is called a sure event. ये statement true है, ये statement false है. तो इसका मतलब है assertion is true but reason is false. So C option would be the correct answer to this problem. Moving on to the next one. The number of red balls in the bag is 10 more than the number of black balls. The probability of drawing a red ball at random from this bag is 3/5. Then the number of bags, the total number of balls in the bag is what? So let's say the number of black balls, उसको हम कुछ assume कर लेते हैं. Number of black balls, let's say this is equal to x. तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो number of red balls हो जाएंगी that will be equal to x plus 10, क्योंकि यहां पे उसने बोला है the number of red balls is 10 more than the number of black balls. तो what is the probability of drawing a red ball from this bag? It will be x plus 10 divided by total number of balls is 2x plus 10 over here, and this is equal to 3/5. Now cross multiplying we get 5x plus 50 is equal to 6x plus 30. Solving we get x की value is equal to 20. तो x की value यहाँ पे 20 आई है, but that is not the answer because हमें चाहिए total number of balls. So total balls जो हैं हमारे पास that is equal to 2x plus 10. So x की value 20 put करके we get 50 as our final answer. So 50 is the correct answer to this problem. Moving on to the next one. The probability of drawing an even prime number out of the numbers 1 to 30. अब हमें पता है प्राइम नंबर्स तो वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, द नंबर इटसेल्फ एंड 1. और हमें इवन नंबर भी चाहिए और प्राइम नंबर भी चाहिए. ओनली इवन प्राइम इज 2. तो इसका मतलब है यहां सिर्फ एक नंबर जो है दैट विल बी फेवरेबल आउटकम. So probability of getting even prime will be equal to favorable outcome which is just 1 divided by total outcomes which is 30. So therefore A option 1/30 is the right answer. Next problem. If a die is thrown once, the probability of getting a number which is not a factor of 36. अब 36 के अगर हम factors देखें, ठीक है, हमें basically 1 2 3 4 5 6 इन्हीं में से factors देखना है, right? क्योंकि जो
36 के फैक्टर्स हैं, वैसे तो 36 तक जाएंगे, लाइक 18 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, बट क्योंकि हमें डाई के थ्रो पे देखना है तो डाई के ऊपर तो यही नंबर्स आ सकते हैं। अब अगर मैं देखूं 36 के फैक्टर्स, ये भी 36 का फैक्टर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और 6 भी है। सो देयर इज ओनली वन नंबर लेफ्ट विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36, विच इज 5। तो इसका मतलब द आंसर वुड बी सी पार्ट, विच इज इक्वल टू 1/6, बिकॉज फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक है और टोटल आउटकम्स 6 हैं। A bag contains red balls and black balls in the ratio 3:7. A ball is drawn at random. The probability that the ball so drawn is black in color. Very easy question. तो अगर red balls को हम 3x मान लें, black balls को 7x मान लें, क्योंकि जब भी रेशो आपको गिवन हो, आपको उस रेशो को विद अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट उसको लिख लेना है, जैसे 3k 4 7k या फिर 3x 7x लिख सकते हैं इसको। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग a black ball will be equal to 7x divided by total number of balls, which is equal to 10x. So 7/10, which is equal to 0.7, is the right answer. C part is the right answer to this problem. Moving on to the next one, the probability of getting a composite number greater than 3 on throwing a die. So again, very easy question. So सारे outcomes के अगर sample space बना ली जाए, so ये हमारे पास sample space है। अगर composite number देखना है greater than 3 से बड़ा, तो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं 4 और 6 जो कि ग्रेटर देन 3 हैं, क्योंकि 5 तो प्राइम है, तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स विल बी इक्वल टू 2 एंड टोटल आउटकम्स इज 6, तो 2/6 1/3 इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट इज द राइट आंसर। 2 coins are tossed simultaneously, the probability of getting at least one head. तो इस क्वेश्चन को करने के मल्टीपल वेज हैं, या तो हम डायरेक्टली इसके केसेस बना सकते हैं, या फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी भी कर सकते हैं। तो 2 कॉइन्स को जब टॉस करते हैं, कैसे आउटकम्स को लिखा जाता है? 2 बार हेड्स लिखा, 2 बार टेल्स, फिर हेड्स टेल्स हेड्स टेल्स। अब हमें केस क्या चाहिए? एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड वाले ये 3 केस हो जाएंगे, और सिर्फ एक ये केस है जिसमें कोई भी हेड नहीं है। तो इसका मतलब 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं और 4 टोटल आउटकम्स हैं, तो 3/4 इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, इवेंट E1 गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 एंड इवन E2 गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो काफी ट्रिक क्वेश्चन है ये, इसको जरा ध्यान से अगर हम देखें, assertion is actually wrong because getting a number less than 3, इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं सिर्फ 1 और 2, एंड गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5 4 5 6। बट यहाँ पे 3 इवेंट जो है मतलब डाई के ऊपर 3 आना, वो उसको हमने कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया। तो दीज टू आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बिकॉज इनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके वैसे भी 1 नहीं आ रहा। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है दैट विल बी इक्वल टू 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2, दोनों को ऐड करके यू विल गेट 5/6 विच इज नॉट इक्वल टू 1। एंड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की डेफिनेशन दे रखी है, इफ 2 इवेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, उन दोनों की सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू डेफिनेटली 1। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, assertion जो हमारी है दैट इज रॉन्ग एंड रीजन जो है दैट इज राइट। तो इसका आंसर भी सी आ जाएगा, A is false, R is true. Moving on to the next one, in a random experiment of throwing a die, which of the following is a sure event? Getting a number between 1 and 6. यहाँ पे word between आ गया, तो इसका मतलब है 1 और 6 के बीच में स्ट्रिक्टली हम बात कर रहे हैं, which means 2 3 4 5 इन नंबर्स की बात की जा रही है। दिस इज नॉट अ श्योर इवेंट क्योंकि 1 और 6 भी आ सकते हैं। गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 6, अगेन यहाँ पे इवन नंबर लेस देन 6 भी आ सकता है। गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 6, ऑड नंबर भी आ सकता है। गेटिंग एन नेचुरल नंबर लेस देन 7, और सॉरी 7 था यहाँ पे, गेटिंग एन नेचुरल नंबर लेस देन 7, दिस इज श्योर शॉट, क्योंकि गेटिंग एन नेचुरल नंबर लेस देन 7 मींस 1 2 3 4 5 6, तो डाई को थ्रो करने पे इन्हीं 6 नंबर्स में से कोई नंबर आने वाला है, तो दिस इज अ श्योर शॉट इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज अगर देखी जाए हाफ होगी, और इसकी प्रोबेबिलिटी जो देखी जाए दैट विल बी इक्वल टू 4/6 which is 2/3. Next is the total number of outcomes in experiment of simultaneous throw of 3 dice. तो इसको आप याद रख सकते हैं, अगर हमारे पास डाइस के थ्रो होते हैं, लेट्स से हमने n डाइस को थ्रो किया है, तो टोटल आउटकम्स जो होंगे दैट विल बी इक्वल टू 6 to the power n, और अगर हम n कॉइन्स को थ्रो करेंगे तो उसके नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे 2 to the power n. So this is the formula which you can remember. तो अगर इस फॉर्मूले से देखा जाए, 3 डाइस को अगर थ्रो किया जाए तो 6 to the power 3, so the answer will be equal to 216. Moving on to the next one, a pair of dice is thrown simultaneously that let E be the event that the numbers, sum of numbers obtained on both the dice is at least 9. The number of outcomes in favor of the event E is what? तो पेयर ऑफ डाइस के क्वेश्चंस में जब सम के क्वेश्चंस किए जाते हैं तो कैसे करते हैं, इसकी मैं स्ट्रैटेजी बता देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2 मार्कर 3 मार्कर में भी आ सकता है। तो सबसे पहले इसकी हम सैंपल स्पेस बनाएंगे 1 1 1 2 1 3
141516। अब आप बोलेंगे कि इतनी मेहनत क्यों करनी है? इतनी मेहनत इसलिए करनी है क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न दिखता है, 31 32 33 34 35 36 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56। तो यहाँ पे जो दो नंबर्स लिखे हैं उसमें पहला नंबर डिनोट कर रहा है कि पहले डाइस पे क्या आया, दूसरा नंबर डिनोट कर रहा है कि दूसरे डाइस पे क्या है। अब हमें जो नंबर का सम है दैट इज एटलीस्ट इक्वल टू 9। तो अगर 9 सम देखा जाए तो 9 सम इस वाले डायगोनल के अलोंग आ रहा है, ठीक है। तो सम जो होता है हमेशा किसी एक डायगोनल के अलोंग कांस्टेंट रहता है। तो इस तरफ को अगर मैं डायगोनल देखूंगा, लेट्स से इस डायगोनल को देख रहा हूं 1 4 2 3 3 2 4 1, तो इस डायगोनल पे सम ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 5। सिमिलरली यहाँ पे जो सम ऑफ नंबर्स है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 9। यहाँ पे जो सम ऑफ नंबर्स है दैट इज इक्वल टू 10। यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 11। यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 12। तो हमें सम ऑफ नंबर्स चाहिए था एटलीस्ट 9, मतलब 9 या 9 से ज्यादा। 4 केसेस यहाँ पे, 4 3 7 यहाँ पे, और 7 2 9, 9 और 1 10। तो इसका मतलब है आउटकम्स इन फेवर ऑफ द इवेंट ई विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी विच इज इक्वल टू 10। तो कुछ इस तरह से हम सम ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स वाले क्वेश्चन करते हैं इन द डाइस प्रॉब्लम। मूविंग ऑन, 3 coins are tossed together, the probability that only 1 coin shows tail is what? तो 3 coins के टॉस पे किस तरह से केसेस बनता है? तो जैसा कि हमने फॉर्मूला में देखा था 2 to the power n मतलब 2 to the power 3, 8 आउटकम्स बनेंगे टोटल। उन 8 आउटकम्स को लिखेंगे कैसे? सबसे पहले 4 बार हेड्स लिखे जाएंगे, 4 बार टेल्स लिखते हैं, फिर 2 बार हेड्स, 2 बार टेल्स, 2 बार हेड्स, 2 बार टेल्स, देन लास्ट में हेड्स टेल्स हेड्स टेल्स हेड टेल हेड टेल। अब हमें केस कौन से चाहिए जिसमें सिर्फ एक कॉइन टेल शो करेगा? सो एक कॉइन के टेल शो करने का ये वाला आउटकम है, ये वाला आउटकम है और ये वाला आउटकम है। सो 3 आउटकम्स हैं ऑफ टोटल आउटकम्स ऑफ 8। सो बी ऑप्शन 3/8 इज द राइट आंसर। Moving on, a card is drawn at random from a well-shuffled deck of 52 playing cards. The probability that the drawn card shows the number 9. तो 9 जो नंबर है वो 4 तरीके से आ सकता है, या तो वो हार्ट्स में आ सकता है, या स्पेड्स में आ सकता है, या क्लब्स में आ सकता है, या डायमंड्स में आ सकता है। मतलब 9 जो कार्ड्स हैं, 9 नंबर कार्ड्स हैं, वो 4 होते हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमारे पास होते हैं वो 52 होते हैं। तो इसका मतलब 1/13 शुड बी द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो नंबर कार्ड की किसी एक स्पेसिफिक नंबर कार्ड की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/13 ही रहती है, और किसी एक स्पेसिफिक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी भी हमेशा 1/13 ही रहती है, क्योंकि 4 सारे डोमिनेशन के कार्ड्स होते हैं। मूविंग ऑन, इफ ई इज एन इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1/999, देन प्रोबेबिलिटी ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0.001। तो अच्छा, इसको यूज करके हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल के देखते हैं। तो अगर हम यूज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, which means this is 1 minus 0.001, which is equal to 0.999. So this is equal to 999 by 1000, और यहाँ क्या बोल रहा है 1/999, तो डेफिनेटली ये रॉन्ग है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के केस में ये जो बार लगा होता है दिस मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री, विच मीन्स नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ई। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ई, इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। दिस इज करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर टू दिस विल बी, assertion is true but assertion is false but the reason is true. C is the correct answer. Next question देखा जाए, a black card is lost from a deck of 52 playing cards. Rest of the cards are shuffled and one card is drawn at random from the available cards. The probability that the drawn card is king of hearts. Okay, तो अगर एक ब्लैक कार्ड गुमा है तो हमारे पास रिमेनिंग कार्ड्स जो हैं, रिमेनिंग कार्ड्स, उनका नंबर जो है वो रहेगा 51। और अगर हम देखें किंग ऑफ हार्ट्स, उसका ब्लैक कार्ड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर ब्लैक कार्ड गुम रहा है तो किंग ऑफ हार्ट्स तो कभी भी गुम नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है किंग ऑफ हार्ट्स जो होगा हमारे पास वो सिर्फ एक होगा, और हमारे पास टोटल प्रोबेबल आउटकम्स इस केस में 51 होंगे, ना कि 52। कंफ्यूज करने के लिए 52 भी दे रखा है। तो द करेक्ट आंसर टू दिस विल बी सी ऑप्शन 1/51। मूविंग ऑन, नेक्स्ट प्रॉब्लम। The probability of event E is equal to 0.1, probability of E complement कितना होगा? So probability of E complement is equal to 1 minus probability of E, which is equal to 1 minus 0.1, which is equal to 0.9. So 0.9, A option is the correct answer. Very easy question.
2 dice are rolled together, the probability that only 1 dice shows the number 4. So ये अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ एक डाइस 4 नंबर शो कर रहा है. तो इसके अगर मुझे केसेस देखने हैं तो कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि जैसे कि 1 4 2 4 3 4 4 4 को नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि वहां पे दोनों डाइस 4 शो कर रहे हैं. 5 4 6 4. तो ये 4 केसेस हो गए और साथ साथ 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6, ये 5 केसेस हो गए. ठीक है, तो 5 ये केसेस और 5 ये केसेस. अब एक केस वो भी होगा जिसमें 4 4 आ रहा होगा. ठीक है, उस केस को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि एग्जैक्टली वन डाइस, ओनली वन डाई इज शोइंग 4. तो इसका मतलब द करेक्ट आंसर विल बी 10 इज द फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 36. 10 by 36 which means 5 by 18 is the right answer. कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वी हैव दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 dice are rolled together, the probability of getting a sum more than 9 is what? तो इसके केसेस को हम इंडिपेंडेंटली भी लिख सकते हैं विदाउट मेकिंग द होल सैंपल स्पेस. तो अगर केसेस को लिखा जाए तो सम 10 वाले कौन से केसेस हैं? सो सम 10 वाले केसेस हैं, वी हैव 4 6 6 4 5 5. और अगर देखा जाए कि सम 11 वाले कौन से केसेस हैं तो 5 6 एंड 6 5, ये दो केसेस हैं. सम 12 वाले कौन से केसेस हैं? 6 6. तो इसका मतलब 6 प्रोबेबल आउटकम्स हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 हैं. सो 1 by 6 is the correct answer. Option number C is the right answer over here. Moving on to the next one, the probability of happening of an event is 57%. Then the probability of non-happening of event. तो 57% को अगर हमें probability में लिखना हो तो probability of happening of event को हम 57 by 100 कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.57. So probability of not happening will be equal to 1 minus probability of happening, which is equal to 1 minus 0.57, which is equal to 0.43. यहाँ 43% भी लिख सकते थे. 0.43 A option will be the right answer. This is the last question which we have. 3 coins are tossed together. The probability that exactly 1 coin shows head is what? तो 3 coins को जब टॉस किया जाएगा तो एक कॉइन पे हेड आने वाले कौन कौन से केसेस होंगे? एक होगा HTT, एक होगा THT, एक होगा TTH. क्योंकि जो एक हेड आएगा वो या तो पहले कॉइन पे आ सकता है या दूसरे कॉइन पे या तीसरे कॉइन पे. तो दिस इज द अदर मेथड ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन हमने टेल्स वाला कुछ इसी तरह से किया था, उसमें सारे सैंपल स्पेस में से हमने पहचाने थे. आपको इंडिपेंडेंटली अगर केसेस लिखने हैं तो ऐसे लिख सकते हो. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें पता है 2 to the power 3 होगा, तो 3 divided by 8 शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम. सो दिस वाज द होल प्रोबेबिलिटी यूनिवर्स. जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे स्टैंडर्ड और बेसिक एग्जामिनेशन में 2025 में. आई विल बी बैक विद मोर वीडियोस. अब स्टैटिस्टिक्स के वीडियोस हम कल डिस्कस करेंगे. So stay tuned for more videos. Like and subscribe the channel. Thank you.